Welcome to one and all in Destiny Tools channel. Today I am going to teach you past continuous tense. You should know that in past continuous tense what you have to use. Number one is that what you have to use in past continuous tense. You have to use in this tense was or were helping verb and first form of verb, first form of verb plus ing. What you have to use first form of verb plus ing and was or were. You should know with singular was used and with plural you have to use were. But I am saying I have told you that was used with singular. I was, he was, she was, and with plural you have to use we were, they were, you have to use. But with you have to use you were. What you have to use with you were. Okay, now you come to know what you have to use in past continuous tense. You have to use was or were, first form of verb plus ing. But question is this: when you have to use past continuous tense? Number one is this: it is used to express an action that was going on in the past, as I was sleeping when the doctor came. When you have to use this past continuous tense, it is used to express an action that was going on in the past. For example, I was sleeping when the doctor came. Here, past continuous tense is in this way: I was sleeping. And here, the action was going in the past. कहने का मतलब यहाँ पे है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तब यूज़ होता है जब एक्शन पास्ट में चल रहा था. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी. एक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूटी में था. व्हेन द डॉक्टर केम, तो हेयर आई वॉज स्लीपिंग कौन सा टेंस हो गया यहाँ पे? पास्ट कॉन्टिन्यूस. यहाँ पे वॉज आई के साथ वॉज लगा है, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस. Another point is that an action that was in progress when the another action took place. तो यहाँ पे एक्शन जो है, एक एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में था और अनदर एक्शन जो है वो टुक प्लेस हो, मीन्स एक्ट हो, अनदर एक्शन जो है वो हो उस, और पहला एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में हो. जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, द पेशेंट वॉज क्राइंग व्हेन द डॉक्टर केम. तो पेशेंट चिल्ला रहा था जब डॉक्टर आया. कि ये वाला एक्शन जो था वो प्रोग्रेस में था, मीन्स कॉन्टिन्यूटी में था, कॉन्टिन्यूस में था. तो ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा गया है, द पेशेंट वॉज क्राइंग व्हेन द डॉक्टर केम. Another point is about past continuous tense is this: two actions going at the same time in the past. यहाँ पे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या किया कि जब डॉक्टर आया तो पेशेंट चिल्ला रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एक की है. और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, कि दोनों की जो है दोनों एक्शन पास में चल रहे थे. जैसे एग्जाम्पल क्या है,
द पेशेंट वॉज क्राइंग व्हेन द डॉक्टर वॉज स्लीपिंग। क्या है यहाँ पे? पेशेंट वॉज क्राइंग, पेशेंट भी चिल्ला रहा था या रो रहा था, कह लो चिल्ला रहा था। व्हेन द डॉक्टर वॉज क्राइंग स्लीपिंग, तो डॉक्टर जब सो रहा था, डॉक्टर की भी एक्टिविटी कंटिन्यू थी उस समय और पेशेंट की भी एक्टिविटी कंटिन्यू थी। मतलब दोनों एक्शन एट द सेम टाइम चल रहे थे। क्या एक्शन है? एक का है क्राइंग एक्शन और दूसरे का एक्शन है स्लीपिंग। तो तब ऐसी एक्टिविटी में भी यू कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। You come to know about past continuous tense. Here you have to use was were, first form of verb plus ing, and you come to know that action took place when one action is in progress and another action took place, and both the actions going on at the same time in the past. Then you have to use past continuous tense. अब चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस के बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें क्या यूज़ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यू हैव टू यूज वन हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट यू हैव टू यूज? हैड एंड थर्ड form of main verb. Main verb. Had is a helping verb, and third form of main verb you have to use past perfect tense. Is it clear? Now, when you have to use past perfect tense, it is used to express an action that had been completed before another action started. ये कब यूज होता है? जब ये एक्सप्रेस करने के लिए जब एक एक्शन दूसरे एक्शन से शुरू होने से पहले कंप्लीट हो गया हो, तो देन यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। एक एक्शन दूसरे एक्शन से स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका था, तो देन यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखी है, द पेशेंट हैड ब्रीथ हिज लास्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। कहने का मतलब ये है कि एक एक्शन क्या है? पेशेंट ने लास्ट सांस ले ली थी डॉक्टर के आने से पहले। तो जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट दी है, एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड, तो ये एक्शन पेशेंट का जो लास्ट ब्रीथ है ये पहले ख़त्म हो चुका था बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड। तो अनदर एक्शन कौन सा था? डॉक्टर अराइव्ड। तो पेशेंट ने अपना आखिरी सांस ले चुका था डॉक्टर जब तक डॉक्टर पहुंचा। डॉक्टर से पहुंचने से पहले पेशेंट अपना लास्ट सांस ले चुका था। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट, हैड ब्रीथ हिज लास्ट, एंड हियर यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड पॉइंट जो है इसका है, अब एक और एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट से पहले मैं इसकी एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बता देती हूँ, विच आई हैव रिटन हियर। ही हैड रॉब्ड द वुमेन बिफोर द पुलिस अराइव्ड। उसने पुलिस के पहुँचने से पहले ही वुमेन को लूट लिया था, रॉब कर लिया था। तो यहाँ पे पुलिस के अराइव होने से पहले ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहला एक्शन खत्म हो चुका था दूसरे एक्शन के एक्ट होने से पहले ही। तो ऐसी कंडीशन में यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपने कहाँ पे यूज करना है। When two actions take place in the past, then the past perfect is used with the earlier action and past indefinite with the latter action. अब यहाँ पे क्या है
कि जब दो एक्शंस पास्ट में एक्ट हो रहे हो, तो पहले एक्शन के साथ हमने कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे के साथ हमने कौन सा यूज करना है, बाद वाले एक्शन के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने चीज़ याद रखनी है कि कैसे हमने करना है, कि पहले एक्शन के साथ हमने पास्ट परफेक्ट यूज करना है और दूसरे के साथ पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया है, ही हैड रॉब्ड द वुमेन बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो पहला एक्शन जो है वो क्या है, दोनों पास्ट के एक्शन है। रॉब्ड, हैड रॉब्ड भी पास्ट का है, पुलिस अराइव्ड भी पास्ट का है, बोथ आर पास्ट। ठीक है, और यहाँ पे पहले एक्शन के साथ हमने कौन सा यूज किया, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे एक्शन के साथ हमने कौन सा किया, पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Past perfect tense may be used in simple sentences when they contain such words still, before, already, etc. Past perfect टेंस वहाँ पे भी यूज होता है सिंपल सेंटेंसेस में, जहाँ पे स्टिल वर्ड हो, बिफोर हो, ऑलरेडी हो, वहाँ पे भी आपने कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आई हैड नेवर नोन इट बिफोर। तो ये कौन सा टेंस है, हैड लिखा है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बिफोर लिखा है, तो विच टेंस आई हैव यूज्ड हियर, पास्ट परफेक्ट। आई हैड नेवर नोन इट बिफोर, तो यहाँ पे बिफोर वर्ड है, तो सो यू हैव टू, सिंपल सेंटेंस है, सो यू हैव टू यूज हियर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट जो है क्या है, पास्ट perfect tense may also be used to express an unfulfilled condition in the past. Unfulfilled conditions in the past, जैसे हम कई बार कहते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, काश, पास्ट की बात हम कहते हैं, काश मैंने ये किया होता तो आज मैं ये कर लेती। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की कोई भी कंडीशन, अगर पुराने ज़माने में हम कहें कि व्हील इन्वेंट हुआ होता तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता, तो ये पास का है। अगर व्हील इन्वेंट हुआ होता तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता, तो ऐसी, तो वो इन्वेंट तो नहीं हुआ था पास्ट में, तो ऐसी कंडीशन में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कंडीशन तो उसमें क्या लग जाता है, कंडीशन के लिए तो आप सबको पता ही है, हम क्या यूज करते हैं, नंबर वन इज इफ, व्हाट यू हैव टू यूज, इफ। ठीक है, कंडीशन के लिए यू नो वी यूज इफ। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, इफ द क्लर्क हैड हेल्प द पुअर, अगर क्लर्क ने गरीब की मदद की होती, द गॉड वुड हैव ब्लेस्ड हिम। आपने याद रखने हैं, पास्ट की कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारी फुलफिल नहीं हुई हो, सिर्फ हम इमेजिन ही करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता, तो तब आपने पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दे दी है, इफ़ द क्लर्क हैड हेल्प द पुअर, अगर क्लर्क ने गरीब की मदद की होती, की नहीं है उसने, पास्ट में मदद की होती, ये इमेजिनेशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, तो गॉड वुड हैव ब्लेस्ड हिम, तो गॉड ने उसे ब्लेस किया होता। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यू शुड कीप वन थिंग इन योर माइंड, कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, पास्ट की
अनफुलफिल्ड कंडीशन हो जब भी, तो देन यू हैव टू यूज इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यूज करना है, प्लस वुड हैव यूज करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि पास्ट की कोई भी अनफुलफिल्ड कंडीशन हो तो देन यू हैव टू यूज़ कंडीशन के लिए इफ़ यूज़ कर लेना है, पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लेना है, और नेक्स्ट पार्ट में जो है वुड हैव यूज़ कर लेना है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लेना है। दिस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड यू शुड कीप 2 or 3 थिंग्स रिगार्डिंग दिस। एक तो आपको बता दिए कि पास्ट परफेक्ट में यूज़ क्या करना है, कब यूज़ करना है, जब दो एक्शन चल रहे हो, पहले वाले पार्ट में आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, दूसरे पार्ट में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह लो, और दूसरी बात यह है कि जब बिफोर हो, स्टिल हो, तो तब आपने क्या यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, और इसके साथ ही जब कंडीशन हो पास्ट की अनफुलफिल्ड देन यू हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस next part of the past tense, that is a past perfect continuous tense. अब इसमें भी you should keep one thing कि past continuous tense में क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें एक वर्ड यूज़ करना होता है परफेक्ट के लिए, हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो बीन लगा देना है, ठीक है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देने हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है, प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने यहाँ पे, प्लस आईएनजी लगा देना है। एंड अनदर थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताया था सिंस और फॉर लगा सकती हो। सिंस कहाँ का लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर कहाँ लगाना है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? तो चलो चलते हैं कि ये टेंस कब यूज होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैड नॉट बीन completed बिफोर द अनदर बिगिन। तो ये जो है एक्शन तब हमने लगाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि दूसरा एक्शन बिगिन हुआ लेकिन उससे पहले ये कंप्लीट नहीं हुआ होता है, विच हैज़ नॉट बीन completed बिफोर द अनदर बिगिन। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, वी हैड बिन सिंगिंग फॉर द लास्ट 2 hours when the teacher entered the class। कि जैसे टीचर ने जब एंटर किया क्लास में तो हम 2 घंटे से गा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अनदर एक्शन बिगिन हो गया, होने से पहले ये कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू रह रही है, 2 घंटे से भी चल रहा था एक्शन, टीचर ने एंटर किया तब भी एक्शन चल रहा था, तो देन यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इज इट क्लियर? तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, कि जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो सुबह से शाम से 2 घंटे से 3 घंटे से चल रहा था, और जब दूसरा एक्शन बिगिन हुआ तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंटिन्यूटी में था। तो एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू टू यू, वी हैड बीन सिंगिंग फॉर द लास्ट 2 hours व्हेन द टीचर एंटर द क्लास। नाउ
I have taught you all the kinds of the past tense. Now, I have already taught you present tense and past tense. Now, let us discuss the practice set on these tenses, two tenses, that is present and past tense. First practice set, in this practice set you have to find out the errors. Errors, mistakes. First sentence is in this way: he is here for the last 2 hours. He is here for the last 2 hours. अब आपको पता है for लगाया है. For कौन से टेंस में लगता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ये चीज़ आपको क्लियर है? तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ प्रेजेंट है कि पास्ट टेंस की बात की गई है. यहाँ पे इज लगा तो प्रेजेंट टेंस है. तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस के लिए हमने क्या लगा देना है? हैज़ बीन. तो गलती क्या है यहाँ पे? हैज़ बीन. इसको काट के क्या कर देना है? ही हैज़ बीन हियर फॉर द लास्ट 2 hours. इज इट क्लियर? सेकेंड सेंटेंस पे आ जाते हैं. शी इज इल फ्रॉम मॉर्निंग. अब आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिल गया है मॉर्निंग. तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमें क्या लगाना है? फ्रॉम तो लगता नहीं है, सिंस लगा लेना है. वन मिस्टेक इज हियर. और दूसरा, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया है तो हमें वहाँ पे इस तो लगाना नहीं है. पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हैज़ बीन. शी के साथ हैज़ लग गया. शी हैज़ बीन इल सिंस मॉर्निंग. इसकी ये करेक्शन होगी. फर्स्ट सेंटेंस भी हो गया, सेकेंड भी हो गया. अब थर्ड सेंटेंस है शी हैज़ और हैड फिनिश्ड हिज वर्क येस्टरडे. अब कोई कहेगा येस्टरडे है इस सेंटेंस में तो हैड लगा देते हैं, पास्ट है. तो कोई कहेगा हैज़ लगा देते हैं. बट when I taught you simple past tense, I told you that whenever there are adverbs of time or past, जैसे यहाँ पे yesterday दिया गया हो तो you have to use which tense? Simple past tense. तो simple past tense में only second form of verb होता है. ये पॉजिटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? ही फिनिश्ड हिज वर्क येस्टरडे. इसकी करेक्शन इस तरीके से हो जाएगी. अब आ जाओ फोर्थ सेंटेंस पे. फोर्थ सेंटेंस क्या है? बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. अब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हुए ये बताया था कि पास्ट परफेक्ट जो है वो हो चुका होता है दूसरे एक्शन से होने से पहले ही. तो यहाँ पे द ट्रेन तो एक्शन हो गया होता है. तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? द ट्रेन हैड लेफ्ट. पास्ट परफेक्ट आ जाएगा. बिफोर आई रीच द स्टेशन कहने का मतलब ट्रेन लेफ्ट हो चुकी थी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ही. तो कहने का मतलब है एक पार्ट में पास्ट परफेक्ट हो गया और एक में सिंपल पास्ट हो गया. जो पास्ट परफेक्ट का वो एक्टिविटी हो गई और दूसरी एक्टिविटी से होने से पहले ही वो एक्टिविटी हो गई. ये एक्टिविटी पहले होती है पास्ट परफेक्ट की और सिंपल पास्ट की बाद में होती है. इज इट क्लियर? तो इसकी करेक्शन ये होगी. अब नेक्स्ट है, फोर्थ भी क्लियर हो गया. फिफ्थ सेंटेंस है आई हैव पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स. ये मिस्टेक बच्चे बहुत कर देते हैं. हमेशा आई हैव पास लिखते हैं, साथ में लास्ट ईयर लिख देते हैं या ईयर मेंशन कर देते हैं, 2 साल पहले लिख देते हैं. तो ये याद रखना है पास की एक्टिविटी है, लास्ट वर्ड दिया है. तो मैंने आपको सिंपल पास पढ़ाते हुए भी कहा था जब भी लास्ट वर्ड हो तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? सिंपल पास. तो सिंपल पास में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है तो हैव तो लगाना है नहीं यहाँ पे. तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? आई पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. हैव को रिमूव कर देना. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट
पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट डे ही इज फीलिंग द पल्स। तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हुए कहा था, फील का फीलिंग कभी भी नहीं होता, ठीक है। फील का फील ही रहता है, इसको कभी भी इसको फीलिंग वर्ड यूज़ नहीं करना है, आईएनजी नहीं यूज़ करना है इसके साथ। तो क्या हो जाएगा इसका, ही। बेशक हम ये एक्टिविटी जो है हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में शो करे, लेकिन उसके लिए हम फीलिंग कभी नहीं यूज़ करते हैं। तो हमने क्या लिखना है, ही फील्स, ही फील्स। नो डाउट ये जो है शो करेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीनिंग दे रहा है, लेकिन फीलिंग नहीं लिखना है, लिखना क्या है, फील्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द मॉर्निंग। ओ भाई मुझे यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम मिला है, तो मैंने यहाँ क्या लिखना है, मॉर्निंग के साथ क्या आ जाना है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाना है यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट हो गया सेंटेंस, और जो नेक्स्ट सेंटेंस में, शी इज राइटिंग टू हिम a letter every day। जब every day हो, you should always keep this thing in your mind। जब भी every day हो, then you have to use simple present tense। कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे इज राइटिंग की जगह क्या आ जाना है, शी राइट्स। इज राइटिंग की जगह क्या आ जाना है, शी राइट्स। She writes a letter every day। She writes to him a letter every day। Is it clear? Now come to the next sentence। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, I does my work। I के साथ तो does आता नहीं है, I के साथ क्या आता है, do आता है। he के साथ क्या आता है, does आता है। Is it clear? ये मैंने टेंस पढ़ाते हुए भी आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन यहाँ पे डू जो मैंने लगाया है, यहाँ पे ये हेल्पिंग मैंने पढ़ाए थे आपको। यहाँ पे डू जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। व्हाट इज द रोल ऑफ डू हियर, मेन वर्ब, एक्टिविटी है, एक्शन है, यहाँ पे मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ डू आना है, मेन वर्ब, आई डू माई वर्क। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आई के साथ जब आपने मेन वर्ब डू एज ए यूज़ करना है तो डू आएगा, ठीक है। तो ही के साथ आएगा तो आपने मेन वर्ब यूज़ करना है तो डज आएगा। तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी, आई डू माई वर्क। ये भी हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, आई वर प्लेइंग द गेम When my parents came to my school। तो आपको पता है आई वर मैंने लगा दिया, आई के साथ तो वर यूज ही नहीं होता। आई के साथ मैंने पढ़ाया पास्ट कॉन्टिन्यूस में, आई वॉज प्लेइंग ए गेम। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, आई के साथ वॉज लगा देना। When my parents came to my school, तो मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, और दूसरा एक्शन जो है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। एक एक्टिविटी जो है वो प्रोग्रेसिंग में होती है, मीन्स कॉन्टिन्यूटी में होती है, दूसरी एक्टिविटी जो है वो सिंपल पास्ट में होती है। तो ये था आपका सारा प्रैक्टिस सेट, एंड टुमारो आई विल स्टार्ट योर फ्यूचर टेंस। And one thing also I want to remind you, subscribe my channel so that you can get all the topics on English grammar. And one thing is more, from first Navratra I am going to start your sociology subject, that is the main subject of your JK SSB supervisor exam. Okay, thank you, bye bye.